کشمیر کے معاملے پر بے باک تقریریں کرنے والے ایک کارکن کو قتل کرنے کی سازش کا پردہ فاش کرتے ہوئے دہلی پولیس نے 2 ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ دہلی پولیس نے بتایا کہ پنجاب سے آئے سکھویندر سنگھ اور لکھن کو دہلی کے وینکٹیشور مارگ علاقے میں پکڑا گیا ہے۔ انسانی حقوق کارکن کے قتل پر ملزمین کو 10 لاکھ روپے دینے کا لالچ دیا گیا تھا۔ فرید کوٹ کی جیل میں محروس پرنس نامی ایک قیدی نے انہیں کشمیر پر بات کرنے والے انسانی حقوق کارکن کا قتل کرنے کی سپاری دی تھی۔ دہلی پولیس کے مطابق ملزمین کے پاس سے 2 دیسی ساختہ بندوقیں، پاکستان میں بنی 2 پستول اور 4 کارآمد کارتوس ضبط کیے گئے ہیں۔ دہلی پولیس پورے معاملے کی چھان بین کر رہی ہے اور ساتھ ہی ملزمین سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ اس معاملے میں CBI بھی سرگرم ہو گئی ہے۔ پولیس اسٹیشن آر کے پورم کے سٹاف نے 2 کرمنلز کو اریسٹ کیا ہے، جن کا نام سکھویندر سنگھ ہے اور لکھن ہے۔ دونوں فرید کوٹ پنجاب کے رہنے والے ہیں۔ دونوں کا گاؤں کوٹکا پورا ہے۔ سکھویندر سنگھ کی عمر 25 سال ہے اور لکھن کی عمر 21 سال ہے۔ دونوں کوٹکا پورا گاؤں میں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ان دونوں کو دلی پرنس الیاس ٹوٹی نام کے ویکتی نے بھیجا تھا اور ان دونوں کو 10 لاکھ روپیہ پرومس کیا تھا، اس شرط پہ کہ وہ ایک سشیل پنڈت نام کے آدمی کو ماریں گے، یعنی اس کی ہتیا کریں گے۔ سشیل پنڈت ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور ہائی کمیونیکیشن انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ کے CEO بھی ہیں۔ دوران تفتیش ان کے پاس سے 4 پسٹل برآمد ہوئی ہیں، 2 جن میں سے فورن میک کی ہیں اور 2 دیسی کٹا ہے یعنی کہ کنٹری میڈ پسٹل ہیں۔ ان کے پاس سے 4 کارٹریجز ملے ہیں اور ایک موبائل فون ملا ہے جس میں سشیل پنڈت کی فوٹو ہے۔ یہ سب سامان ان کو پرنس الیاس ٹوٹی نے دیا تھا۔ پرنس الیاس ٹوٹی یہ پتہ چلا ہے کہ لکھن کا بچپن کا متر ہے اور ابھی فرید کوٹ کے جیل میں مرڈر ٹرائل بھگت رہا ہے، جس کی پشٹی دوران انویسٹیگیشن کر دی جائے گی۔ ساؤتھ ویسٹ ڈسٹرکٹ میں یہ دونوں رینٹڈ اکوموڈیشن دیکھنے کے لیے گھوم رہے تھے، تب سیکرٹ انفارمیشن پر لوکل پولیس آر کے پورم پولیس اسٹیشن کے اسٹاف نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد میں انہوں نے پوری اپنی کرمنل کانسپریسی بیان کری۔ جموں میں کانگریس پارٹی کا شانتی سمیلن منعقد کیا گیا۔ اس دوران کانگریس لیڈروں نے جموں کشمیر اور لداخ کے حوالے سے اپنی کاوشیں گنوائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ملک کے ساتھ جموں کشمیر اور لداخ میں بھی کانگریس کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ کانگریس لیڈروں نے پارٹی کی کمزور پوزیشن کا اعتراف کرتے ہوئے پارٹی کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر کپل سبل نے کہا کہ غلام نبی آزاد ہر ضلع میں کانگریس کی پوزیشن سے واقف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تجربہ کار انجینئر کے طور پر غلام نبی آزاد خامیوں کا پتہ لگا کر پارٹی کے انجن کو درست کر سکتے ہیں۔ غلام نبی آزاد نے اپنے خطاب میں کہا کہ کانگریس لیڈر کشمیر کا ریاستی درجہ ختم کرنے کے علاوہ خطے کے عوام کے مفاد میں پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کسی مذہب، خطے، زبان والوں سے امتیاز نہیں کرتی۔ آنند شرما، راج ببر جیسے دیگر لیڈروں نے بھی اس موقع پر خطاب کیا۔ BJP RSS سے لے کر نیشنل کانفرنس اور PDP سے لے کر پنتھر پارٹی تک سب چاہتی ہیں اسٹیٹہڈ ہو اور جموں میں اور کشمیر میں اور لداخ میں 2 اور چیزیں چاہیے کہ یہاں اس لیے صرف یہاں کے ہی لوگ خرید سکتے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ نارتھ ایسٹ میں ہے، ہماچل میں ہے، اتراکھنڈ میں ہے، وہاں تو آرٹیکل 370 نہیں ہے۔ تو وہ زمین، سب سے زیادہ زمین اگر چلی جائے گی، شروع ہوگی تو جموں کی جائے گی، کشمیر اور لداخ کی نہیں، اور لداخ لے کی جائے گی، کرگل کی نہیں جائے گی، کیونکہ وہاں پریٹن۔ اور دوسرا، نوکری یہاں کے بچوں کو ہی یہاں کے لگنی چاہیے، باہر والا نہیں سکتا۔ ہم باہر والوں کے لیے خلاف نہیں، میں تو باہر میں ہی زیادہ کام کر رہا ہوں۔ کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں کوئی انڈسٹری نہیں ہے۔ یہ ہندوستان، یہ اگر دلی سے جاؤ گے تو آدھا بزنس اسی لیے چلتا ہے کہ پنجاب کے لوگ، ہریانہ کے لوگ دلی میں بیچ میں سے گرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کوئی نہیں آتا۔ جس کو جموں کشمیر آنا ہے وہی آئے گا۔ میں بدھائی دینا چاہتا ہوں کشمیر کو، لوگوں کو بھی،
चिनाब वैली, राजौरी, पुंछ के उन लोगों को भी, कठुआ, सांबा, उधमपुर और जम्मू के विशेष रूप से, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू, सांबा और कठुआ, यहां मिलिटेंट आके घुस जाते हैं। ये सब मिलिटेंसी का मुकाबला कर रहे हैं, देश की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से जान देते हैं, लेकिन उसका सिला यही मिला कि स्टेट के टुकड़े हो जाएं, बेकारी बढ़ जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए, यहां के उद्योग बंद हो जाए, यहां के टैक्स लगे। 30 साल से खाने के लिए पैसे नहीं है, तो एक टोल था हमारे, आज 5 टोल लगाए। कहां से वो टोल के पैसे लगाए? पानी का टैक्स, हाउस टैक्स यहां नहीं था जम्मू और कश्मीर में, लेकिन वो टैक्स भी लगा दिया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो राज्यसभा से रिटायर्ड हुए हैं, राजनीति से नहीं। कांग्रेस के सीनियर 23 बड़े लीडरों के इस इजलास में गुलाम नबी आजाद के खिताब में कांग्रेस क़यादत से बगावत के सुर नजर आए। जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर इंसाफ नहीं बांटते हैं, बल्कि जिसको जरूरत है इंसाफ मिलने की, उसको इंसाफ देते हैं। वो लड़ाई हमारी पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, और एक मजबूत कांग्रेस पार्टी ही वो कर सकती है। मैं पार्लियामेंट की राज्यसभा से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से रिटायर नहीं हुआ हूं जैसे मेरे साथी ने। और पार्लियामेंट से मैं पहली दफा नहीं रिटायर हुआ। जब लोकसभा से आना था राज्यसभा, तो भी 3-4 महीने का गैप था। जब यहां से पहले बना, जब सीएम बना था, तब भी बीच में गैप था, बीच में एक और दफा गैप था। तो हम इधर से डूबते हैं, इधर निकलते हैं, इधर से निकलते हैं, इधर डूबते हैं। कोई अभी और यारी नहीं रही, कोई हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, और सतर्क करना है, देश को मजबूत करना है। फौज के मुख्तलिफ जुमरों के अफसरों और जवानों को एजाज पेश करने के लिए आज उधमपुर में एक खसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। बहादुरी का मुजाहरा करने वाले फौजियों को तमगों से सरफराज किया गया और नुमाया कारकर्दगी पर भी मुख्तलिफ रैंक के फौजियों को मेडल्स और अवार्ड्स दिए गए। अच्छा मुजाहरा करने वाली फौजी यूनिट्स को भी इस दौरान तहनीत पेश की गई। GOC नॉर्दर्न कमांड इस तकरीब में शरीक थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ सीजफायर मुआहदे की पाबंदी के सिलसिले में हुए नए समझौते से मिलिटेंसी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस मुतासिर नहीं होंगे। मशरक़ी लद्दाख में फौज की दिलेरी को लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी ने सराहा और कहा कि दहशतगर्दों की तरफ से शुरू होने वाली मुसल्लह झड़पों के वाकयात में कमी आई है। और सेना हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। आपके परिजनों की वीरता की गाथा आने वाली पीढ़ियां प्रेरित होती रहेंगी। मैं उन सभी यूनिटों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्हें वर्ष 2021 के लिए GOC यूनिट प्रशंसा से सम्मानित किया गया है। यह सभी रैंकों द्वारा इस कार्यकाल के दौरान उनकी सामूहिक योग्यता और अथक प्रयासों का प्रतीक है। पिछले साल एक ऑपरेशन का मौका मिला था मुझे, जिसमें काफ़ी क्लोज फाइट होने के बाद मुझे आज ये सेना मेडल से नवाजा गया है। बहुत ही फख्र की बात है कि आज मेरे माँ बाप ने, मेरे घर वालों का सबसे ज़्यादा अहम रोल है कि उनकी परवरिश का नतीजा है जो आज मैं इंडियन आर्मी में सेवा दे पा रहा हूँ। PMO में ममलकती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डोडा शहर का दौरा किया। इस दौरान वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS तलबा के पहले तालीमी बैच की शुरुआत की तकरीब में शामिल हुए। कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ अटल डिल्लो ने बताया कि इंस्टीट्यूट के पहले तालीमी सेशन में 100 तलबा और तालिबात शामिल होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस तकरीब में वर्चुअल तरीके से शामिल हुए और GMC डोडा के अव्वल MBBS बैच से खिताब किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव रे भटनागर भी इस तकरीब में शामिल थे। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने द चिनाब के उन्वान से कॉलेज की पहली मैगजीन भी जारी की। LG मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करते हुए इस मौके पर वादी चिनाब के लिए तारीखी लम्हा करार दिया।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि उधमपुर डोडा हिंदुस्तान का वाहिद पार्लिमानी हलका है जिसमें 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज है। उनके मुताबिक ये उनके सियासी करियर का सबसे बड़ा कारनामा है। कोई ऐसा दौर ना गुजरा जब कोई ना कोई कदावर लीडर यहां से दिल्ली ना पहुंचा। कोई ना कोई ऐसा दौर ना गुजरा जब कोई ना कोई कदावर लीडर यहां से उठकर इस रियासत जम्मू कश्मीर की काबीना में मिनिस्टर वजीर ना बना। तो फिर क्यों कर मरमत से वोट ले लिए जिन्होंने आपको उस ओहदे तक पहुंचाया, लेकिन मरमत की सुध लेने का काम हमारे हिस्से में आया। हमारा ये सौभाग्य है, परमात्मा ने हमें ये वरदान दिया। लेकिन आने वाले जमाने में अवाम को ये बातों का जवाब देना पड़ेगा। कश्मीर खित्ते में आज बारिश और हल्की बर्फबारी हुई। पूरे इलाके में गुज़िश्ता रात से ही बारिश का सिलसिला जारी था। एक हफ्ते तक वादी में मौसम निस्बतन गर्म रहा और अब फिर से कम दर्जे हरारत में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। बाजारों में भी लोग खुद को गरमाने के लिए आग सेकते और इलेक्ट्रिक हीटरों से गर्मी लेते नजर आए। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज शाम से मौसम में बेहतरी आती जाएगी। मौसम का मिजाज बदल जाने से कम दर्जे हरारत में 4 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो गई है। गर्म गोमुत बदल पलव वलो तो हल गमस गर्मस आज गो खिलाफ तवक्का गो आज ये टेम्परेचर वारिया डाउन तो तम मूजूब तौर इसलिए पे थोड़ा बहुत गर्मी हूं इंतजाम कर जालान। निगीन लेक्स कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इश्तराक से खुशहाल सर गुलसर झील को आलूदगी से पाक करने की मुहिम का आज आगाज कर दिया। ये झील किसी दौर में खूबसूरत और शफाफ हुआ करती थी, लेकिन अब ये कूड़ेदान में तब्दील हो चुकी है। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉले ने आबी गुजरगाहों और झीलों पर गैर कानूनी कब्जों को फौरी हटाने की बात कही है। आबी ज़खायर को आलूदगी से पाक बनाने की ये मुहिम एहसास प्रोग्राम के तहत चलाई जा रही है। मकामी लोगों ने इस मुहिम की सताइश की है। डिविजनल कमिश्नर ने भी इस प्रोग्राम को भरपूर मदद फराहम करने का वादा किया है। काफी अरसा से यहाँ गंदगी फैली हुई है। जो झील है, झील का नामो निशान भी यहाँ नहीं दिखाई देता है। गिल सर का नाम जो है वो फेमस जो बर्ड है गिल, उसके नाम पर पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी वहाँ कोई परिंदे बर्ड्स यहाँ दिखाई देते हैं। डेफिनेटली ये जो पिछले कुछ एक अरसा से जो यहाँ की जो एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी को जो हानि पहुँची है, उसको रिस्टोर करने की ताकत कम्युनिटी में है और कम्युनिटी ने डिसाइड कर दिया है कि इसको रिस्टोर करना है। जो हमारा एक मिशन एहसास है, उस एहसास को मैं कहता हूँ कि ये एहसास यहाँ के लोगों में आना है, ये एहसास मुझ में आना है, ये एहसास आप में आना है, ये एहसास एडमिनिस्ट्रेशन में आना है। तो हम चारों मिलकर जब काम करेंगे तो ये वाटर बॉडीज हम बचा सकते हैं। वैसे वारियाहन जायन गए डिपार्टमेंटन तिमो नी कह इंटरेस्ट। बहरहाल मंजूर अहमद वांगुन सोबन बड़ मशकूर, तिम आय योर, तिमो तुल अमिक कदम कि बसा कर ये पन्ने लेवल पे साफ। रामबन के राजगढ़ में एक सड़क हादसा पेश आया है। राजगढ़ के चेली रोड पर एक गाड़ी खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 अफराद की मौत हुई है, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। कश्मीर में साल 2021 के पहले 2 महीने में आग की 340 वारदात पेश आई, जिनमें करोड़ों रुपए मालियत की इमलाक का नुकसान हुआ। साल 2019 के मुकाबले साल 2020 में आग की वारदात में 28% का इजाफा दर्ज किया गया है। उधर घर हो या निजी इमारत, यहां तक कि सरकारी इमारत में भी फायर सेफ्टी कवानीन पर कोई अमल नहीं होता है। पेश है ये रिपोर्ट। कश्मीर में हाल ही में आग की कई वारदात रोनमा हुई हैं। कई घर खाकसर हुए और उनका सब कुछ भयानक आग की नजर हो गया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज कश्मीर के आदाद शुमार के मुताबिक साल 2021 के पहले 2 महीनों में ही आग की 340 वारदात पेश आई, जिनमें करोड़ों रुपयों मालियत की इमलाक का नुकसान हुआ। आदाद शुमार पर नजर डालें तो साल 2019 में जहां 1812 आग की वारदात में 45 अफराद मारे गए और
65.15 करोड़ रुपए मालियत की इमलाक का नुकसान हुआ। वहीं साल 2020 में 2336 आग की वारदात रोनमा हुई, जिनमें 64 जानें चली गईं और 55.15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। फायर एंड इमरजेंसी महकमे की बरवक्त कार्रवाई के चलते साल 2019 में 640 करोड़ रुपए की इमलाक बचाई गई और साल 2020 में 458 करोड़ रुपए की। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस कश्मीर के ज्वाइंट डायरेक्टर बशीर अहमद कहते हैं कि कश्मीर में आग को काबू में करना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि घरों में लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। गुंजान इलाकों में तंग गलियों और उनमें गाड़ियों की पार्किंग और फायर गैप न होने की वजह से तरबियत याफ्ता अमला भी मुश्किल में पड़ जाता है। आग की वजूहात ज्यादातर शॉर्ट सर्किट और एलपीजी सिलेंडर में पाई गई है। अक्सर देखा गया है ये जो लगभग 90% जो आग के वजूहात है वो दो चीज़ों से आजकल लगते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक ओरिजिन के होते हैं, बिजली से लगते हैं, खासकर मौसम सरमा में, और दूसरा है एलपीजी जो हमारे किचन में यूज़ होता है और सर्दियों में भी हम गर्मी के लिए भी यूज़ करते हैं। ये दो चीज़ें ज़्यादा हैं। उसके अलावा कांगड़ी वगैरह ये तो मतलब कुछ छुटपुट वगैरह मसले ऐसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही देयर ओरिजिन इज़ फ्रॉम इलेक्ट्रिक एंड दिस एलपीजी। तो हमारे ये जो पुराने घर हैं उनमें ये जो बिजली की तारें वगैरह ये हम अक्सर रिप्लेस नहीं करते हैं, इनमें ही दागदूजी करते हैं। जब शॉर्ट सर्किट उनमें होता है तो आग लगती है। इसी तरह हम हीटर का यूज़ करते हैं, बॉयलर का भी घर में यूज़ कर ऐसे ही रखते हैं रात भर, तो उनमें भी हीटिंग इफेक्ट की वजह से अक्सर आग लग जाते हैं। सरकारी हो या निजी इमारत, तामीर के वक्त आग से तहफ्फुज़ के इंतजामात करना कानूनन लाजमी है, लेकिन कश्मीर में 90% इमारतों में इन पर अमल ही नहीं होता। यहाँ तक कि स्कूल और सनती यूनिटों, शॉपिंग मॉल्स में कहीं ये इंतजामात नजर ही नहीं आते। फायर एंड इमरजेंसी महकमा कहता है कि वो हिदायत तो दे सकते हैं, लेकिन अमल करवाना म्यूनिसिपल इदारों का काम है, जो वो नहीं करते। नगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अगर कोई नया कोई इंडस्ट्रियल यूनिट खोलना होगा या कोई बिल्डिंग बनानी होगी, कमर्शियल होगी या कुछ और होगा, तो ये हमें लिखते हैं कि इसका आप फायर के मतलब एनओसी दीजिए। तो हम उस वक्त क्या इनिशियल स्टेज पर जब किसी को कोई मकान बनाना हो, बिल्डिंग बनानी हो 5 मंजिल 6 मंजिल वाली, तो वो हमारे पास आते हैं, तो हम उनको रिकमेंडेशन देते हैं कि एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड क्या होना चाहिए आग से बचाव के लिए इन बिल्डिंगों में जब आप इनको कमीशन करोगे। तो वो पहले से ही उनको बता के रखते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि वो बाद में सब चीज़ें उसमें करते हैं, बनावट की सब चीज़ें उसमें होती है, लेकिन फायर सेफ्टी का कुछ खास कुछ लोग करते हैं, लेकिन अक्सर नहीं करते हैं, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। कि हमारे पास वो एक्ट्स नहीं है जिसकी वो एक्ट जो हम लागू कर सकते हैं और उन बिल्डिंग ओनर्स को उस वक्त बता सकते हैं कि हम नहीं करने देंगे आपको काम तब तक जब तक आप ये सेफ्टी मेजर्स, लेकिन वो रोल जो है म्यूनिसिपैलिटी का है। आग एक आफत है और एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी बस्ती को तबाह कर सकती है। ऐसे में एहतियात और कवानीन पर अमल करवाना जरूरी है। बल्दियाती इदारों को बेहंगम तामीरात पर रोक लगाने की बेहद जरूरत है और फायर सेफ्टी कवानीन पर अमल करवाना उनका काम है जो उन्हें अमलाना ही चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शबीर अहमद की रिपोर्ट। शोपियां के मारूफ समाजी और सियासी कारकुन हेरोइट वॉट पीडीपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती और तर्जुमान सुहेल बुखारी ने उनका पार्टी में खैर मकदम किया। यावर हेरोइट वॉट बिजनेस स्कूल इंग्लैंड के ग्रेजुएट हैं। उनके मरहूम दादा अब्दुल मजीद बांडे साबिक में शोपियां के MLA रह चुके हैं। इस मौके पर अपने खिताब में महबूबा मुफ्ती ने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो मुतहिद होकर अवाम के हकूक के लिए जदोजहद करें।
ملک کے مختلف حصوں میں آباد تمام کشمیری مائیگرنٹوں کو عنقریب ہی آیوشمان بھارت PMJAY صحت کارڈ فراہم کیے جائیں گے۔ ریلیف کمشنر جموں مائیگرنٹس تیج کرشن بٹ نے کہا کہ کچھ کشمیری مائیگرنٹس کو یہ کارڈ فراہم کرنے میں دقتیں پیش آ رہی ہیں، تاہم انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ کنبوں کو یہ کارڈ فراہم کرنے میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں کیونکہ ان کا نام 2011 میں کیے گئے سوشل اکنامک کاسٹ سینسس میں شامل نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ اس معاملے میں سنجیدگی سے کوششیں کر رہا ہے اور تمام مائیگرنٹس کو عنقریب ہی یہ کارڈ فراہم کیے جائیں گے۔ اکنامک کاسٹ سینسس ہوا ہے 2011 میں، تو یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے مائیگرنٹ ساتھیوں کا اس سوشو اکنامک کاسٹ سینسس میں نام نہیں ہے، یا پہلی بار سرچ کرنے سے وہ ملتا نہیں ہے، دوسری بار بھی کرتے ہیں، کوئی ملتا ہے تو کوئی ملتا نہیں، یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پوری کی پوری فیملی نہیں ملتی ہے، یا کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہیڈ آف دا فیملی ملتے ہیں، ریسٹ آف دا فیملی ممبرس نہیں ملتے ہیں، یہ بھی استھتی ہے۔ لیٹ ڈاؤن پروسیجر ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے دیا ہوا ہے کہ ان فیملیز کو بھی انکلوڈ کیسے کرنا ہے کہ جو اس سوشو اکنامک کاسٹ سینسس میں نہیں ہے۔ جو فارم ڈیوائز کیا ہے ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے، اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ آرڈر نمبر 846 کے ساتھ وہ فارمز بھی ہم نے اویلیبل رکھے ہیں، کیمپس میں بھی اویلیبل رکھے ہیں، زونز پہ بھی اویلیبل رکھے ہیں، اور ہم نے اپنے سبھی کیمپ کمانڈنٹوں اور زونل آفیسرز کو یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ دے ول بی ریسپانسبل فار انکلوژن آف لیفٹ آؤٹ فیملیز۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ قریب 2 مہینے پہلے جموں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اسکولز کھولنے کا آرڈر آیا تھا، بچے اسکول گئے، لیکن بہت سارے اسکولی بچے کووڈ سے متاثر ہو گئے، جس کے بعد والدین نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے انکار کر دیا۔ تاہم اسکولوں کی انتظامیہ فائنل امتحان کے لیے زبردستی اسکول آنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ اسکولوں کے انتظامیہ کے رویے کے خلاف طلباء کے سرپرستوں اور والدین نے اسکولوں کے باہر احتجاجی مظاہرہ منظم کیا۔ دراصل ان لوگوں کو اسکول انتظامیہ کے ذمہ داروں سے ملاقات کے لیے اسکول گیٹ پر 3 گھنٹے انتظار کرنا پڑا تھا، لیکن ان کی سنوائی نہیں کی گئی۔ اونچی آواز سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے بچوں کو جیون دو، پڑھائی ان کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ان کا جیون۔ آج اگر وہ سیف ہیں، کل اسی دیش کا نام روشن کریں گے، اسی اسکول کا نام روشن کریں گے۔ کیوں ان کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے؟ ایز اے پیرنٹ میں سبھی پیرنٹس کی طرف سے بول رہی ہوں کہ آن لائن ایگزام ہوں۔ اس سال انہوں نے آن لائن کلاسز لی اور ایگزامز بھی انہوں نے 3 ایگزام لیے، وہ بھی آن لائن ہوئے، اور فائنل ایگزام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کرونا جب پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے تو ہم بچوں کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری بس سمپل سی ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ایگزام ہے یہ آن لائن ہو۔ حضرت علی کے یوم ولادت کی مناسبت سے انجمن امامیہ نے جموں کے کربلا کمپلیکس میں ایک روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا۔ ملک بھر سے آئے مقررین اس دوران شریک رہے۔ انہوں نے اسلام میں ولایت کے تصور پر روشنی ڈالی۔ اس اجتماع کے دوران امام علی کے اصول و تعلیمات پر چلنے کی تلقین کی گئی۔ انسانیت اور دنیا کی خوشحالی کے لیے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے پر زور دیا گیا۔ ملک کا بچہ ملک کی ترقی ہے، اس کی قیمت ملک جانتا ہے اور ہم ملک کو سمجھتے ہیں، اس لیے ضرورت ہے ہم ملک کو سمجھیں تاکہ ملک کے تئیں اپنا حق ادا کر سکیں۔ اسی ہدف کے تحت یہ پروگرام ہوا، اور الحمدللہ یہاں پر کچھ جو یہاں پر لوگ تشریف لائے تھے، جو یہاں پہ دھرم گرو آئے، جو بڑے بڑے شخصیتیں آئیں، انہوں نے اسی طرح کے اپنے وچار پیش کیے ہیں، اور اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے دیش میں اس طرح کی چیزیں زیادہ سے زیادہ ہوں تو مجھے لگتا ہے وہ دن دور نہیں کہ ہمارا کھویا ہوا افتخار، کھوئی ہوئی عزت واپس آ جائے گی، اور ہم پھر ایک پریوار کی طرح اس دیش میں خوشی خوشی زندگی بسر کریں گے۔ مرکزی وزیر کھیل کرن رجیجو نے گلمرگ میں نیشنل سینٹر آف ایکسلنس فار ونٹر سپورٹس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر گورنر کے مشیر فاروق خان اور سرمد حفیظ کے علاوہ اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ کرن رجیجو نے گزشتہ سال گلمرگ میں نیشنل سینٹر آف ایکسلنس فار ونٹر سپورٹس بنانے کا اعلان کیا تھا۔ کل ہی وزیراعظم نریندر مودی نے بھی جموں کشمیر میں 2 سینٹر تعمیر کرانے کا اعلان کیا ہے۔ اس نئے سینٹر کے ذریعے سے گلمرگ میں سرمائی کھیلوں کو فروغ ملے گا اور کھلاڑیوں کو بہتر پلیٹ فارم فراہم ہوگا۔ گلمرگ میں کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کے آج دوسرے روز مختلف مقابلے ہوئے ہیں۔ آئس سکیٹنگ رنگ اور کلب کے مقام پر سنو شوز کے مقابلے ہوئے۔ ان مقابلوں میں مختلف ریاستوں کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔
स्नो शो रेस का आगाज फौज के 15 गढ़वाल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष ने हरी झंडी दिखाकर किया। गुलमर्ग में खेलो इंडिया के एक हिस्से के तहत यहां मुख्तलिफ सकाफती और तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए जा रहे हैं, जिनमें मशहूर और मारूफ फनकार अपने फन के जौहर बिखेर रहे हैं। मैं अभी स्नो शूज कंपटीशन में हिस्सा ले रहा हूँ और स्नो शूज की बात कही जाए तो ये एक काइंड ऑफ सीजनल गेम है हमारे लिए, क्योंकि ये विंटर्स में हम स्नो शूज, जब स्नो होंगे तभी स्नो शूज कर पाएंगे। बाकी हम समर्स में इसको रोड पे एथलेटिक स्पोर्ट्स लेके इसके प्रैक्टिस किया करते हैं। यूनियन टेरिटरी लद्दाख बनने के बाद फर्स्ट टाइम हम लद्दाख टीम को इस इवेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस बात की हमें बहुत खुशी है। और बड़ा अच्छी तरह रेस हो गया सर, बिकॉज जिस तरह के कंडीशंस थी, जिस तरह का वेदर था, उसके अकॉर्डिंग इट वाज नॉट पॉसिबल, बट एनी हाउ की मैनेजमेंट ने किसी यूं तुम करके इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया ताकि जितने भी बाहर से लोग आए थे वो विदाउट रेस के ना जाए। इस चीज़ के लिए हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं सर। इसमें बहुत अच्छा लगा कि पार्टिसिपेट मैंने किया। मैं दूसरों लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ कि इनमें पार्टिसिपेट लोग इनसे सीखते हैं बहुत कुछ, और आइंदा भी यही इवेंट होनी चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे JNK में 4 साल से ये स्नो शो हो रहा है, मगर ये सेकंड खेलो इंडिया है इस साल यहाँ पे। स्नोफॉल के दौरान थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि आंखों में स्नो जा रहा था, तो फिर भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के सिलसिले में आज मुख्तलिफ मुकाबले हुए। सुबह सवेरे से ही आइस रिंग स्केटिंग में कई मुकाबले मुनक्कद हुए और उसके बाद यहाँ क्लब के मुकाम पर स्नो शूज के मुकाबले भी हुए हैं, जिनमें मुल्क भर से खिलाड़ियों ने यहाँ पे हिस्सा लिया है। और आज सुबह सवेरे से ही गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई है और उसके चलते यहाँ पे इन खिलाड़ियों ने काफी खुशी का इजहार किया है। गुलमर्ग यहाँ सियाहत के लिए नहीं बल्कि इन सरमाई खेल मुकाबलों के लिए यहाँ पे काफी अहम मानी जाती है। फिरोज वानी के साथ मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। आज पुंछ के इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से लड़कियों के UT लेवल टाइकांडो मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। अंडर 14, 17 और 19 के जुमरों में 3 रोजा मुकाबलों का एहतमाम किया गया है। जोरदार बारिश के बावजूद आज बड़ी तादाद में खिलाड़ी और खेलों के शौकीन शामिल रहे। जिला रामबन के बालाई इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हुई और मैदानी इलाकों में जुमे के रोज से ही मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जिसके चलते जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन और बानहाल के दरमियान कई मकामात पर पसियां और चट्टानें गिराईं। इसी सिलसिले में ट्रैफिक इंतजामिया की तरफ से कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी गई थी। ताहम सनीचर के रोज गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की जानिब चलने की इजाजत दी गई। ट्रैफिक इंतजामिया की तरफ से कौमी शाहराह पर सफर करने वाले लोगों को एहतियात बरतने की तलकीन की गई और मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखकर सफर पर निकलने की भी अपील की गई। इन्होंने रोका, से छोड़ा, आगे रोका, फिर छोड़ा, फिर रोका। बहुत दिक्कत आ रही है यार, बहुत दिक्कत आ रही है। अपील यही है, इसको कुछ जुगाड़ करो, जल्दी जल्दी फटाफट कुछ करो इसको। इसमें क्या है, ये थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन की भी थोड़ा नाकामी है, ये सही ढंग से गाड़ियों को छोड़। द्रास सोनमर्ग कौमी शाहराह को कल खोल देने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया है। कल से लगातार बर्फबारी के चलते यह कदम उठाया गया है। भारी बर्फबारी के नतीजे में द्रास करगिल रोड बंद हो गई है। 2 दिन से बर्फबारी के बाद श्रीनगर करगिल कौमी शाहराह को खोलने का प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा है, क्योंकि जोजला और मीनामर्ग में 1 फुट बर्फ पड़ी है, जबकि द्रास में 8 इंच बर्फ जमा है। और कल से लगातार बर्फबारी और हवाएं चलने की वजह से पूरा निजाम दरहम बरहम होकर रह गया है। काकसर और लाचन के मकाम पर बर्फीले तूफान के बाद द्रास करगिल रोड बंद है और अब भी बर्फबारी जारी है। लहमे थांगनांग प्यांग के मकतब इमाम जमा में हजरत अली के यौम विलादत का जश्न मनाया गया। अंजुमन इमामिया लह के अशरफ अली बरछा इस महफिल में मेहमान खसूसी थे। शेख नजीर अहमद सराफुद्दीन मेहमान ज़ीवकार के तौर पर शरीक रहे। इस दौरान कसीदा और नातखानी की महफिल मुनक्किद हुई। अंजुमन इमामिया के सदर ने मकतब की नई इमारत का इफ्तिताह किया और तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश की। मजहबी रहनुमाओं ने हजरत अली की तालीमात पर चलने की लोगों को तलकीन की।
सखावत का बिल्कुल कोई सानी नहीं है दुनिया में कि किस उनका, इसलिए आज हम उनका दिन मनाते हैं और हम सब लोगों को हम उनसे सबक लेके हमें पूरा तमाम आलम इंसानियत के लिए, चाहे वो किसी भी मज़हब व मिल्लत से ताल्लुक़ रखते हों, इंसानियत की खातिर इंसानियत की खिदमत करने के लिए जिस तरह हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हमको एक नमूना पेश किया, उस पर चल के हम सब लोगों को उनके दिन मनाने का, इसके मकसद को हासिल करने की कोशिश करना। बयान नहीं कर सकता, इसलिए कि अली की इतनी फ़ज़ाइल, इतनी फजीलत मौजूद है कुरान से लेकर अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अना मदीनतुल इल्म, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, व अलीयुन बाबुहा, और अली इस शहर का दरवाज़ा है। करगिल में बुद्ध तबके के लोगों ने उनके कमरी कैलेंडर के पहले मुक़द्दस महीने की तकरीब मनाई। भारी बर्फबारी और शदीद ठंड के बावजूद सख्त मौसमी हालात में बोधों ने ये जलसा मुनक़्क़िद किया और मजहबी त्यौहार तांगपाए चोना मनाया गया। बॉडी से, माइंड से या मौत से जो भी पाप हुआ हो उसको कम करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ ही बुद्धा का बताए हुए रास्ते पे सीरियसली इस महीने में चलते हैं, और आइंदा के लिए भी पूरे महीने में किसी भी जीव जंतु को कोई कष्ट ना पहुंचाए, किसी भी लोगों को सब के साथ मिलजुल के रहना और बुद्धा के जो टीचिंग्स है उसको फॉलो करते आज हमारे करगिल के इस घूमने पे हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वादी में 10वीं जमात के इम्तहानात के नताइज में जिला कुलगाम की सीरत बशीर ने 500 में से 500 नंबरात हासिल किए हैं। बोलिस कुलगाम के कश्मीर पब्लिक स्कूल में जेर तालीम तलबा और तालिबात ने 5 पोजीशंस हासिल की है और उनमें से 3 लड़कियां हैं। तलबा ने इसे वालदैन की मदद और असातिज़ा की मेहनत करार दिया है। वालदैन के मुताबिक उनकी माहाना आमदनी अगरचे कम है, ताहम स्कूल इंतजामिया ने उन्हें फीस के मामले में तंग नहीं किया, जिसकी वजह से उनके बच्चों ने तालीमी साल ज़ाया नहीं किया और इम्तहानात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई गई। 4G नहीं था, 2G था, तो इसके बावजूद हमारे टीचर्स ने कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लास से हमने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। अगर हमें कहीं पे डिफ़िकल्टी होती थी तो हम टीचर्स को कॉल करते थे, उन्होंने हमारे बहुत सारा इंडिविजुअल अटेंशन दिया, जिसकी वजह से ये सिक्योर कर पाना हमारे लिए एक ईजी टास्क लगा, और इसकी कामयाबी का नतीजा आपके सामने ही है। हमारे वालिदीन भी उन्होंने भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। कभी कभी स्कोर कम आता था, उन्होंने हमें कभी भी डिमोटिवेटेड फील नहीं होने दिया, और ये सब उन्हीं के सपोर्ट उनके गाइडेंस की वजह से, हमारे स्कूल, हमारे टीचर्स की वजह से, वालिदीन की वजह से कि हम ये स्कोर अचीव कर पाए, एंड अल्हम्दुलिल्लाह। इसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब इन्हीं की वजह से हुआ है। उन्होंने हमें हर वक्त सपोर्ट किया, हमें गाइडेंस दी और हमें मोटिवेटेड रखा, तो ये सब इन्हीं की वजह से हो पाया। बहुत डिफ़िकल्टी होती है जब घर में किसी ने नहीं पढ़ा होता है, तो ये सब टीचर्स की वजह से मुझे इतनी एफर्ट्स मिलते थे, टीचर्स की साथ गाइडेंस मिलती थी, तो मैंने मेरे घर वालों ने भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी मुझे पढ़ाने के लिए। आज मैं जो यहाँ पर हूँ वो सब टीचर्स की वजह से और मेरे पेरेंट्स की वजह से। गुजार नंबर टीचर यहाँ स्कूल मे तकरीबन कम बे 4,000 रुपये फीस बकाया मे अत मुतलिक ज्यादा कर तो ये बाकी स्कूल बच्चे तंग गई तम गई क्या बिठम घर मज तो बहुत शुक्रगुजार टीचर हूँ तो यमो कोर्स तथ मुतलिक तंग। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में आज प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुर्रहमान नजार की सुपुर्दोशी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ कॉलेजों के प्रिंसिपल और दीगर अमले ने शिरकत की। कॉलेज के नए प्रिंसिपल प्रोफेसर सिमनानी ने तमाम शुरका का इस्तकबाल किया। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से आज जिला पुलवामा में क्लास 4th पोस्ट के लिए तहरीरी इम्तहान मुनक्किद किया गया। जिले में उम्मीदवारों के लिए 11 इम्तहानी मराकिज कायम किए गए थे। डीसी पुलवामा डॉक्टर राघु लांगर ने मुख्तलिफ इम्तहानी मराकिज का मुआयना किया और इंतजामात का जायजा लिया। SRB में दर्जे चहारुम की आसामियों के लिए आज कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके मसल करना और केरन के दर्जनों उम्मीदवार इम्तहानात में हिस्सा नहीं ले पाए। तफसीलात के मुताबिक सरहदी इलाकों में बर्फबारी की वजह से वो कुपवाड़ा जिला सदर मकाम तक नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से वो इम्तहान में शामिल नहीं हो सके। इन उम्मीदवारों ने SSRB के चेयरमैन खालिद जहांगीर से मुतालबा किया है कि उनके लिए नए तारीखों का ऐलान किया जाए ताकि वो भी मौसम में बेहतरी आने के साथ ही इम्तहान में शमूलियत कर सके।
जो बच्चों से काफ़ी सारे बच्चे आए थे एग्ज़ाम के लिए जा रहा था कुपवाड़ा, लेकिन बस की वजह से काफ़ी स्नोफॉल होने की वजह से हमने उनको रोका है जी। वो कहीं आधे रास्ते से, जो कि यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो 3 से 4 फुट जो बर्फ़ इस वक्त बच्चल में मौजूद है और काफ़ी स्नोफॉल कल से हुई है और रोड पिछले 1-2 दिन से बंद पड़ा है। आपके वजह से मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर अपील है, गुजारिश है कि मेहरबानी करके इलाकाई बच्चल की तरफ से जो बच्चे हैं इनको नए तरीके से एग्ज़ाम लिया जाए। कोंछीपुरा टंगमर्ग से ताल्लुक रखने वाले गौहर अली लोन को IARA इनोवेटिव फार्मर नेशनल अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। यह अवार्ड इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली की जानिब से दिया गया है। गौहर अली लोन को आज दिल्ली में मुनक्किदा तकरीब में यह अवार्ड दिया गया। जम्मू कश्मीर से सिर्फ 2 नौजवान इस अवार्ड के लिए मुंतखब हुए। अवार्ड मिलने पर कश्मीर के लोगों ने खुशी का इजहार किया। जिला रामबन के गांधरी इलाके में गुज़िश्ता शब लगी भयानक आग की वजह से 6 दुकानें, एक रिहायशी मकान और 2 निजी गाड़ियां मुकम्मल तौर से खाकसर हो गई हैं। आग की खबर मिलते ही जिला इंतजामिया सरगर्म हो गया, ताहम फायर सर्विसेज वाले काफी ताखीर से जाए हादसे पर पहुंचे, जिसके नतीजे में आग के शोलों ने लाखों का सामान खाकसर करके रख दिया। इस दौरान मकामी लोगों ने अपनी जानिब से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन फायर इंजन पहुंचने के बाद ही आग पर मुकम्मल काबू पाया जा सका। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने ADC रामबन की सरबराही में एक टीम तश्कील दी है जो नुकसान का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने फायर सर्विसेज खिदमात को मजीद मुस्तहकम बनाने का इरादा किया है। राजौरी के थाना मंडी में एक जमीनी तनाजे में हुई लड़ाई में 14 अफराद जख्मी हुए हैं। 2 भाइयों के बीच ही जमीनी तनाजा चल रहा है। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल राजौरी मुंतकिल किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर में कोविड के केसों की हफ्तावार शर्रा में 40% इजाफा दर्ज किया गया है। पॉजिटिव केसों में से 2/3 केसेस ट्रैवलर्स के हैं। बताया गया है कि अस्पतालों में कोविड के 4% से भी कम मरीज जेरे इलाज है। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक अभी हालात काबू में हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक 67% हेल्थ केयर वर्कर्स और 59% फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले मराहिल में ही वैक्सीन दे दी गई थी। इसी बीच जम्मू कश्मीर में कोविड के 97 नए केसेस की निशानदेही हुई है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। डीसी बारामूला ने आज एक मीटिंग मुनक्किद की। दरियाओं पर वाक़े मिनरल ब्लॉक्स के कामयाब बोली दहंदगान को NOC जारी करने के लिए गौर किया गया। डीसी ने शफाफियत को यकीनी बनाने की हिदायत दी। बारामूला में समाजी इंसाफ और NGOs के किरदार पर एक वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम डाक बंगले में यह प्रोग्राम हुआ। इस दौरान हाई कोर्ट के जज जस्टिस अली मोहम्मद मागरे मेहमान खसूसी की हैसियत से शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद मेहमान ज़ीवकार की हैसियत से शरीक हुए। ह्यूमन एड सोसाइटी, सिविल सोसाइटी मेंबरान और मुअज़्ज़ज़ शहरी इस जलसे में शरीक हुए। सरकारी दफातर में कामकाज को बेहतर बनाने के लिए जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा ने आज दोपहर को मुख्तलिफ सरकारी दफातर का अचानक मुआयना किया। डीसी ने कस्बे पुलवामा में मुख्तलिफ सरकारी दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी देखी और सरकारी दफातर में हो रहे कामकाज का तफसीली जायजा लिया। प्रधानमंत्री FMFP स्कीम से आम लोगों को वाकिफ कराने के लिए हॉर्टिकल्चर और मार्केटिंग महकमे की जानिब से परीचू पुलवामा में जानकारी कैंप का इनेकाद किया गया। महकमे बागबानी और एनिमल हस्बेंड्री के अलावा दीगर महकमे जात के माहिरीन ने लोगों को इस स्कीम की जानकारी फराहम की। महकमे ज़राअत की जानिब से आज टाउन हॉल त्रौल में
ایک جانکاری کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر ماہرین نے زمینداروں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی زمینوں کی مٹی کا ٹیسٹ وقتاً فوقتاً کرائیں اور محکمے کی طرف سے جاری کی گئی ہدایات پر عمل کریں۔ جموں کشمیر میں سیاحت کے موقع پر اجاگر کرنے کے مقصد سے راجستھان کی راجدھانی جے پور میں ایک شو منعقد کیا گیا۔ جموں کشمیر کے شعبہ سیاحت کے زیر اہتمام روڈ شو کے تحت یہ پروگرام جل محل کے قریب منعقد کیا گیا۔ جموں کشمیر کے روایتی رقص سے جے پور آنے والے ان سیاحوں کو راغب کرنے کی کوشش کی گئی۔ مانساگر جھیل کے کنارے یہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ جموں کشمیر ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے افسران اور متعلقین نے اس موقع پر بتایا کہ جموں کشمیر میں سیاحوں کے لیے کافی سہولتیں موجود ہیں۔ ضلع پونچھ کی مینڈھر پولیس نے پولیس اسٹیشن میں ایک محفل مشاعرے کا اہتمام کیا۔ پولیس اہلکار اور عام لوگ بڑی تعداد میں اس دوران شریک ہوئے۔ مقامی شاعروں اور گلوکاروں نے اپنے اپنے کلام پیش کرتے ہوئے سما باندھ دیا۔ حاضرین نے ان فنکاروں کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ راجوری میں گرو روی داس جی کی 644ویں جینتی پورے عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ آج مرکزی تقریب جواہر نگر کے مندر میں منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں مرد و خواتین اور بچے بڑی تعداد میں شریک تھے۔ مذہبی اسکالرز نے گرو روی داس جی کی زندگی اور تعلیمات پر اس دوران روشنی ڈالی۔ پیغام یہ دیا گیا کہ تمام انسان ایک خدا کی مخلوق ہے اور اس کے سامنے سب یکساں ہیں۔